Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 22 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी का, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया सूरत, जो कहाँ पर है गुजरात में, और वाराणसी जो कहाँ पर है आपका यूपी में। सूरत में याद रखेंगे इन्होंने जाके अभी और सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया, जो है सूरत डायमंड बोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरत डायमंड बोर्स, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, राइट, जिसको अभी इनॉग्रेट किया गया। इससे पहले पेंटागन ऑफ यूएसए आपकी सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होती थी, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स ने उसको पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ साथ एक नया टर्मिनल बिल्डिंग है सूरत एयरपोर्ट, ये भी इनॉग्रेट किया गया। देन ही लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,150 करोड़ रुपीज इन वाराणसी यूपी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड इनॉग्रेटेड काशी तमिल संगम 2023 इन वाराणसी यूपी। ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग वाराणसी टू न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन करी कि कितने नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोक्योर करने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स प्रोक्योर करने की बात की गई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो आपके 6 ऑफ न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल रहेंगी, ये मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। और इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था इनको 1614.89 करोड़ रुपए के लिए मिला था। ठीक है, और ये डिलीवर किए जाएंगे आने वाले 5.5 से 6 सालों में टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, राइट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया वर्थ 488.25 करोड़ रुपीस का, ताकि जो शिप की रिपेयर और मेंटेनेंस है ना, उसका ध्यान कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रखेगा, राइट। तो जो भी इंडियन नेवल वेसल्स होते हैं, इंडियन नेवल शिप्स होते हैं, उनमें जो भी आपके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होगी, रिपेयरमेंट होगा, वो कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एंड उसके लिए कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? 488.25 करोड़ रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आती है। अगर मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1934 में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे मधु एस नायर, हेडक्वार्टर कोची केरला, एंड 1972 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं कि इन्होंने लॉन्च किया एनजीडीआर पोर्टल एंड अ रोड शो ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। एनजीडीआर क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं।
नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी। ये एक रेपोजिटरी है, एक बंडल रहेगा रिसोर्सेज का, जहाँ पर कोई विजिट करके जो डाटा है वो एक्सेस कर सकता है। जो भी आपका सारा डाटा रहेगा रिलेटेड टू इट, वो यहाँ से एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये जो NGDR पोर्टल है, ये किसके द्वारा भी लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ऑफ 1 ठीक बनता है। ठीक, इनके द्वारा ही यहाँ पे NGDR पोर्टल, जो कि है नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी पोर्टल एंड अ रोड शो ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली। ये जो NGDR पोर्टल है ना, ये एक फ्लैगशिप इवेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम रहेगा टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस ऑफ द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। करेक्ट। एंड यहीं पे अगर देखें जो NGDR पोर्टल है, इसके बारे में अगर देखें, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है, हम देख चुके हैं। और इस पोर्टल के अंदर ही हम देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो डाटा को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। मैप सर्विसेज, 35 मैप सर्विसेज, जैसे आपकी जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, डाटा लेयर्स, ये सारी चीज़ें भी एक्सेस कर पाएंगे लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा फाउंडेशन डे, विच फाउंडेशन डे ऑफ AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यह भी ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली। तो AIIA का कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया अभी रिसेंटली? तो ये पहला एडिशन रहेगा AIIA का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, जो कि गोवा में है। इसका पहले एडिशन ऑब्जर्व किया गया। इससे याद रखेंगे, ये 11 दिसंबर 2022 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और अब 11 दिसंबर 2023 में इसका पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। राइट, फर्स्ट फाउंडेशन है। इसके लिए एक इवेंट हुआ था। करेक्ट, कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। उस इवेंट को AIIA एंड इंडिया पोस्ट ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था। करेक्ट। और याद रखेंगे, इसी के दौरान यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और उनके मिनिस्टर, या फिर हम बोलें सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उनके द्वारा एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया टू मार्क द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ AIIA गोवा। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रेड लिस्ट की। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। रेड लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट होती है जिसमें आपके थ्रेटन्ड स्पीशीज का जिक्र होता है। राइट, मतलब ये स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। राइट, तो उन स्पीशीज को यहां पर इस रेड लिस्ट में लाया जाता है। पूछा जा रहा है ये रेड लिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है? तो IUCN। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राइट, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इस रेड लिस्ट को रिलीज किया गया। और अभी COP28 के दौरान ये रेड लिस्ट की जो अपडेटेड वर्जन ना, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, जिसमें से बताया गया 1,57,190 स्पीशीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया इन द रेड लिस्ट, आउट ऑफ विच 44,016 स्पीशीज ऐसी हैं दैट इज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। ठीक, IUCN की बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, एंड 1948 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो अभी रिसेंटली RBI ने रेजर पे, कैश फ्री एंड 4 अदर फर्म्स को अभी अप्रूवल दे दिया है टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। राइट, पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे इनको अप्रूवल मिल गया है। अब ये अपने कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। पहले इनके पास परमिशन नहीं थी, इन पे बैन लग गया था। ये नए अपने पेमेंट कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी RBI के अप्रूवल के बाद टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर ये ऑनबोर्ड कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखें तो जो कंपनी है जो एक्टर जिनको अप्रूवल मिला वो है रेजर पे, दूसरा आ जाता है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा आ जाता है फिर आपका नियो बैंक जो है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चौथा आ जाता है आपका एनकैश। राइट, और पांचवा आ जाता है आपका गूगल पे, जी पे जिसको हम कह देते हैं गूगल पे। राइट, इनको पेमेंट एग्रीगेटर का भी अप्रूवल मिल गया बाय RBI। राइट, और पेमेंट एग्रीगेटर कौन होते हैं? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी होती हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट। राइट, वो एक मीडिएटर का काम करती हैं कि आप एक जगह से पैसा लेके दूसरे को दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम है। राइट, पेटीएम क्या करता है? आपका पैसा लेता है और जिसको आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दुकान पे कर रहे हैं तो दुकान वाले को पेमेंट दे देता है। तो एज अ बीच में वो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, तो वो एक पेमेंट एग्रीगेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, और यह आएगा विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप अ टास्क was to study recommendations on IEG
टास्क फोर्स दैट वाज टू स्टडी रिकमेंडेशंस ऑफ आईईजी एंड एमडीबी रिफॉर्म। देखो ये आईईजी क्या है एंड ये एमडीबी क्या है। एमडीबी होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, राइट। ये अभी इनका ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स अभी इस्टेब्लिश किए गए थे, राइट, आफ्टर द रिकमेंडेशन ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। फिर यहीं पे याद रखेंगे इसी के दौरान आईईजी इंटर गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स ये भी एक सेटअप किए गए, क्योंकि अभी क्या देखा गया कि जो एमडीबी है ना ये 9 कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ, तो इनके ऊपर वर्क करने के लिए, इनके ऊपर स्टडी करने के लिए और अच्छे से कि क्या क्या चीज़ों को हम और बेटर कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स ये सेटअप किए गए थे अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। एंड ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड इनके बारे में और चेंजेस हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक टास्क फोर्स सेटअप करी, तो ये टास्क फोर्स किसने सेटअप करी, जो इनके साथ 9 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, अजय बंगा जी। तो उनके साथ उन्होंने यहाँ पे ये टास्क फोर्स सेटअप करा ताकि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके ऊपर और रिसर्च की जा सके और उनको स्ट्रेंथन करने का और तरीके ढूंढे जा सके। ठीक, इंडिया की प्रेसिडेंसी कब थी G20 की, तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक यहाँ पे इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, फिर अगर यहीं पे बात देखें, ये है अजय बंगा जी, राइट, प्रेसिडेंट है ये वर्ल्ड बैंक के। यहीं पे देखें तो जो वर्ल्ड बैंक है अग्रीमेंट रहा है 9 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो क्या रहेगा, स्केलिंग ऑफ फाइनेंसिंग कैपेसिटी, जो बूस्टिंग कलेक्टिव एफर्ट्स है क्लाइमेट पर उस पर फोकस किया जा सके, एनहेंसिंग कंट्री लेवल कोलैबोरेशन, स्ट्रेंथनिंग को फाइनेंसिंग एंड कैटलाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। और हम जानते ही हैं कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं एंड इसके लिए जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग लगेगी ना, उसमें बताया जा रहा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे इनको अचीव कर सकेंगे। ठीक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हो गए, जैसे आपका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, राइट, देन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, राइट। तो ये आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं सारे। मूविंग ऑन, किस बैंक ने सिक्योर किया एक मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन ई ग्रेस पोर्टल फ्रॉम असम। GRAS क्या है, ये आपका गवर्नमेंट रेसिपेट अकाउंटिंग सिस्टम। तो अभी बंधन बैंक ने यहाँ पर साइन किया एक ऑथराइजेशन ताकि ये कलेक्ट कर सके EGRAS पोर्टल, राइट, रेवेन्यू थ्रू EGRAS पोर्टल। इससे क्या होगा, जो कि सिटीजन्स रहेंगे असम के, वो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे थ्रू दिस EGRAS पोर्टल, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड पेमेंट हो चाहे वो नॉन टैक्स की पेमेंट हो। यहाँ पर आपको कोई बिल पे करना है, यहाँ पर आपको टैक्स पे करना है, यहाँ पे आपको हाउस टैक्स देना है, राइट, यहाँ पे आपको नया लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए पेमेंट करनी है, आपको वाटर का बिल पे करना है, कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है असम के द्वारा उसका फी पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे असम के लोग कर सकेंगे ऑन दिस EGRAS पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा। ठीक है, बंधन बैंक की बात करें तो CEO कौन रहेंगे, चंद्रशेखर घोष। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर रहेगा एंड इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, हु वन द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर। तो छठे रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर लिटरेसी से किनको सम्मानित किया गया, वो है सुकृता पॉल कुमार, राइट। सुकृता पॉल कुमार ये एक इंडियन पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर है जिनको ऑनर किया गया छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से। और किस बुक के लिए, इनके बुक का नाम रहेगा सॉल्ट एंड पेपर। इस बुक को पेपर वॉल पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी, इनको 2018 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। एंड इन्होंने अभी रिसीव किया रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट्स 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से तो सुकृता पॉल कुमार, अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट 2023 से अभिजीत बनर्जी को सम्मानित किया गया। ठीक, मार्क करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज बेसिकली अवार्ड दिया जाता है इंडियन ऑथर्स को जो कि नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, ड्रामा ये लिखते हैं। और यहीं पे भी सुकृता पॉल कुमार को $10,000 से सम्मानित किया गया एंड एक होममेड ब्रास स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, राइट, वो भी इनको यहाँ पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करें सुकृता पॉल कुमार की, ये बॉर्न एंड रेज कहाँ है, कीनिया में हुई, राइट। और फिर इनको यहाँ पर अभी 2010 में शी रिसीव द ग्रांट फ्रॉम साहित्य अकेडमी अवार्ड
एंड 2012 में इनको फेलोशिप, टैगोर फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए, ये हैं आपकी सुकृता पॉल कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच स्पेस इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड 2023 LEIF एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3 प्राइज, राइट? तो वो है इसरो, हमारा इंडिया का इसरो। इन्होंने अभी रिसीव किया 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3। ये लीफ एरिक्सन अवार्ड दिया जाता है ना, बेसिकली ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जब आप कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं, राइट? जब आप कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं उससे रिलेटेड ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। जो आप एक्सप्लोरर होते हैं, राइट, कोई खोज करते हैं, कोई नई चीज़ आपने ढूंढी, उसके लिए यहाँ पे आया, आपने कोई नई चीज़ करी, एक्सप्लोर करा, तो उसके लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चंद्रयान 3 को क्यों दिया गया? क्योंकि इससे इंडिया वो पहला नेशन बन गया, पहली कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड जिन्होंने लैंड किया नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक, तो लीफ एरिक्सन का ये 9th एडिशन था इस अवार्ड का। किसको सम्मानित किया गया? किस इंस्टीट्यूशन को? इसरो को यहाँ पे सम्मानित किया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ एक दो चीज और याद रखेंगे, ये तो था आपका लूनर प्राइज के लिए लीफ एरिक्सन। अगर लीफ एरिक्सन अवार्ड पूछा जाए फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो किसको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट से? तो वो है बिल एंडर्स। इनको सम्मानित किया गया लीफ एरिक्सन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और लीफ एरिक्सन यंग एक्सप्लोरर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है केली जेरार्डी, राइट? केली जेरार्डी से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, एक्ट्रेस आस्था रावल, इनको क्राउन किया गया विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के टाइटल से। आई रिपीट, आस्था रावल, इनको क्राउन किया गया विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के टाइटल से। ये जो पीजेंट टाइटल हुआ था इंडिया में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आस्था रावल को क्राउन किया गया विद द टाइटल ऑफ बेस्ट इन इंटरव्यू एंड बेस्ट इन स्विमवेयर कैटेगरी में, राइट? ये जो सिलेक्शन प्रोसेस थी इसकी ऑनलाइन सबमिशन से हुई थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स एंड पर्सनल स्निपेट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम देख ही चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। ये हैं क्राउन प्रिंस शेख मैशाल अल अहमद अल जबेर अल शबा। ये अभी 17th एमीर बने हैं कुवैत के। ये न्यूज़ हम कल परसों कवर कर चुके हैं, राइट? जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। नेक्स्ट आ जाती हैं वीता दानी। वीता दानी वो पहली इंडियन बनी टू बी इंडक्टेड एज ITTF गवर्निंग बोर्ड मेंबर। वीता दानी, आई रिपीट, ये वो पहली स्पोर्ट फिलेंथ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर बनी है जिनको अभी इंडक्ट किया गया एज ITTF, जो कि है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का गवर्निंग बोर्ड मेंबर, राइट? वीता दानी ये को फाउंडर रहेंगी। वीता दानी अलॉन्ग विद जलन दवानी ये को फाउंडर हैं दानी फाउंडेशन के। एंड ये चेन्नई फुटबॉल क्लब की भी यहाँ पे को ओनर रहेंगी अलॉन्ग विद अभिषेक बच्चन एंड महेंद्र सिंह धोनी। एंड ये पहली इंडियन बनी जिनको इंडक्ट किया गया इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर। ठीक है, वीता दानी जी। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर आते हैं। तो इंडसइंड बैंक ने अभी निपन लाइफ इंडिया एसेट्स में अपना जो स्टेक था 2.86% का, उसको सेल कर दिया वर्थ 795.27 करोड़ रुपीस। ठीक है, मार्क कर देना। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो TBAL टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, इन्होंने भी डिलीवर किया 250th फ्यूसलेज ऑफ AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। ये फ्यूसलेज क्या होता है? जो ढांचा होता है, आप सिर्फ ढांचा कह सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो सिर्फ बॉडी होगी, राइट? खाली बॉडी को यहाँ पे डिलीवर किया गया, फ्यूसलेज उसको कहते हैं। ये प्राइमरी बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की या हेलीकॉप्टर की। तो अभी टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, इन्होंने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कि इनके हेडक्वार्टर में है हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पर अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की जो फ्यूसलेज है, जो बॉडी है, ये डिलीवर करी है अभी रिसेंटली। और ये 250वां फ्यूसलेज है, मतलब 250वीं बॉडी रहेगी। ये जो फ्यूसलेजेस हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया में, हैदराबाद तेलंगाना में। फिर इनको एरिजोना भेजा जाता है USA में, जहाँ पे फाइनल असेंबली होती है। और वहाँ पे पूरा सेटअप करके फिर वो US आर्मी को एंड इंडियन आर्मी को या अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के साथ टाई अप करा था ताकि 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर किया जा सके $800 मिलियन की लागत से। और कब ये डील हुई थी? 2020 में ये डील साइन हुई थी। ठीक है, टाटा बोइंग एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात करूं, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में, 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आते हैं।
तो पद्मा भूषण अवार्डी एंड वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। ये एक इंडियन वीमेन राइट एक्टिविस्ट है एंड फॉर्मर चेयर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। इनका जन्म 1938 में हुआ था लखनऊ यूपी में। इनको रोजालिया वुल्फ मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फ्रॉम द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज इन 2014। इनको ऑनर किया गया विद पद्मा भूषण इन 2007 फॉर सोशल वर्क एंड शी वाज आल्सो अवार्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर बिल्डिंग अ सोसाइटी फॉर ऑल द एजेस ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन एजिंग बाय यूनाइटेड नेशन इन 2011। तो ये हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, राइट। एंड ये वी मोहिनी गिरी याद रखेंगे, ये डॉटर इन लॉ है किनकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी की। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। तो अभी फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे कब ऑब्जर्व किया गया, 31 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे अक्रॉस द ग्लोब। 21 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द पाइवटल रोल ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली बास्केटबॉल इन फोस्टरिंग ह्यूमन राइट, पीस, डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। एंड याद रखेंगे बास्केटबॉल ये वो पहला टीम स्पोर्ट बना टू बी ऑनर्ड विद एन यूएन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे। और कब ऑब्जर्व करते हैं, 31 दिसंबर को यूएन बास्केटबॉल इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है और यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। पीएम मोदी ने विजिट किया गुजरात एंड यूपी में, हम देख चुके हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्थ 1614 करोड़ रुपीज विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। देन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने लॉन्च किया एनजीडीआर पोर्टल एंड रोड शो ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। पहला फाउंडेशन डे ऑफ AIIA का था वो ऑब्जर्व किया गया एंड ये AIIA कहाँ पर है, ये गोवा में है। देन IUCN के द्वारा रेड लिस्ट रिलीज की गई जो कि थ्रेटन स्पीशीज के लिए है एंड COP28 जो कि दुबई UAE में हुआ था वहाँ पर इसको रिलीज किया गया अपडेटेड रेड लिस्ट को। रेजर पे, कैश फ्री अलॉन्ग विद 4 अदर फर्म्स, इनको RBI का अप्रूवल मिला टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। वर्ल्ड बैंक ने सेटअप किया एक टास्क फोर्स टू स्टडी रिकमेंडेशंस ऑन IEG एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म्स। बंधन बैंक ने सिक्योर किया मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन EGRAS पोर्टल फ्रॉम असम। सुकृता पॉल कुमार इन्होंने भी 6ठा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जीत लिया है फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर। देन इसरो ने रिसीव किया 2023 का 9th एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सप्लोरेशन। देन एक्ट्रेस आस्था रावल इनको क्राउन किया गया विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 से। क्राउन प्रिंस शेख मैशाल अल अहमद अल जबैर अल सबा हैज बीन स्worn in as the 17th Emir of Kuwait. Veeta Dani became the first Indian to be inducted as the ITTF governing board member. IndusInd Bank exited Nippon Life India Asset and has sold their stake for 975.27 crore rupees. TBAL इन्होंने डिलीवर किया 250th फ्यूसलेज फॉर द अपाचे हेलीकॉप्टर। देन पद्मा भूषण अवार्डी एंड वीमेंस राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इनका निधन हो गया। एंड फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा या फिर हम बोलें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा अभी एक डिजी ELV ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजी ELV क्या है, ये एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रहेगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगा जब आप अपनी पुरानी गाड़ी को जो आपकी 10-15 साल से ऊपर की हो रखी है, 10 फॉर डीजल 15 फॉर पेट्रोल, आप उसको जाके स्क्रैपिंग के लिए दे देते हैं, राइट। उससे क्या होगा, एक तो जो पुरानी व्हीकल्स होती है ना वो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करती हैं, करेक्ट। एक तो वो रिड्यूस होगा उससे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जो अगर आप स्क्रैपिंग पे जाते हैं तो उसकी जगह फिर आप नई व्हीकल खरीदेंगे तो एक सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ही अभी ये डिजी ELV को लॉन्च किया गया जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा जब भी आप व्हीकल्स को जाके अपने यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एन ऑथराइज्ड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑटोमेटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्टर बाय मेटा मटेरियल्स सर्कुलर मार्केट्स इन न्यू दिल्ली, राइट। इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी ELV डेवलप्ड बाय MMCM एंड ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द यूजर्स टू लॉफुली ट्रेड दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो CD है ये इशू किया जाएगा टू अ यूजर जब वो अपनी व्हीकल को सबमिट करेंगे फॉर स्क्रैपिंग एट द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पर।
राइट. इट इज़ इन बीटा फेस ओवर द लास्ट 3 months और ये डिजी ELV इन्होंने अभी तक 800 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स डिलीवर किए हैं टू द व्हीकल ओनर जिन्होंने अपनी व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए दी है. फिर यहीं पे अगर आपको याद हो तो एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आई थी. पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. कहाँ पर लॉन्च किया गया था इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को? इन अगस्त 2021 लॉन्च किया गया था. एंड जो भी अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, राइट, फॉर सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, और जो अनफिट व्हीकल्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको स्क्रैप के अंडर लाया जाए ताकि जो पॉल्यूशन भी है वो भी रिड्यूस हो सके. और यहाँ पे 25% तक का टैक्स रिबेट भी देने की बात की गई फॉर न्यू व्हीकल्स आफ्टर स्क्रैपिंग द ओल्ड वंस. ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द ग्रेजुएट्स डिक्लाइंस टू 13.4% बिटवीन जुलाई 2022 एंड जून 2023. तो आई रिपीट, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना फॉर ग्रेजुएट्स एज्ड 15 एंड अबव डिक्लाइन टू 13.4% इन 2022-2023 फ्रॉम 14.9% इन जुलाई 2021 टू जून 2022. यहीं पे अगर हम डाटा देखें, चंडीगढ़ एंड दिल्ली they have the lowest unemployment rates for graduates at 5.6% and 5.7% respectively, while the highest unemployment rate is in Andaman and Nicobar Island at 33%, followed by Ladakh at 26.5%. वहीं पे आंध्र प्रदेश का देखें तो सिर्फ 24%. करेक्ट. इसी के अलावा याद रखेंगे अगर हम लार्जेस्ट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, among the largest states the unemployment rate was high in Rajasthan at 23.1%, उड़ीसा में 21.9%. राइट, मार्क करके चलेंगे ये डाटा, ये सारा इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स. ECG's पिथमपुर फैसिलिटी इन्होंने भी ज्वाइन किया ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को बाय WEF. ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है? बेसिकली जो इंडस्ट्रियल आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है ना, उसको बेटर करने के लिए, बेटर एक इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए, ताकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो अक्रॉस वर्ल्ड और बेटर हो सके. तो अभी इसी के लिए अभी रिसेंटली ACG एसोसिएट्स कैप्सूल प्राइवेट लिमिटेड ने, ये एक फार्माक्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि पिथमपुर मध्य प्रदेश में है, इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है एज फैक्ट्री लाइट हाउस. इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स IPL की टीम है. राइट. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या याद रखेंगे, जो ये IPL ऑक्शन हुआ ना अभी 2024 का, ये कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट. एंड KKR ने अभी मिशेल स्टार्क को बाय कर लिया फॉर 24.75 करोड़ रुपीज़, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं IPL के. ये भी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले पैट क्यूमिंस थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको 20.5 करोड़ से बाय किया गया था सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा, लेकिन अभी मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ की लागत से बाय कर लिया गया एंड ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं. मिशेल एरन स्टार्क ये कौन सी टीम के लिए हैं? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज. इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस. राइट. पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 2006 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया 20 दिसंबर को. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़. ये इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स. अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये जो इनिशिएटिव रहेगा इसके अंदर 680 करोड़ रुपए की लागत आएगी एंड यहाँ पर काम क्या किया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराने के लिए जो लोकल यूथ है हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. एंड यहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को भी प्रमोट किया जाएगा एंड जो यूथ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर सके एंड एज अ टैक्सी वो चला सके वहाँ पर, ये इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा. ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पे? 23 साल के होने चाहिए, वो कम से कम 7 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. राइट. एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चाहिए थी 10+2 उनके पास होनी चाहिए. वैलिड ड्राइवर लाइसेंस एंड आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए फॉर द सेम. नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन. 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स. मैं चाहता हूँ सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करें. गैलीफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन दैट वाज रिसेंटली न्यूज़, ये किस कंट्री में है? दूसरा, प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज गिवन कंट्रीज? थर्ड, द टर्म JN1 and Pirola that were recently making news are related to which of the following? चौथा, Cotton Corporation of India was making news for undertaking minimum support price operations for cotton in India. Where are the headquarter of Cotton Corporation of India? डायरेक्टली Cotton Corporation of India का हेडक्वार्टर पूछा. नेक्स्ट, स्वरवेद
Mahamandir, which is Swern, ये है स्वर्ण महामंदिर, which is the world's largest meditation center, स्वारवद महामंदिर. ये इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली किस सिटी में? तो स्वारवद महामंदिर, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर. ये कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.